take my right. Hi, good evening, everyone. We'll wait for a couple of more minutes for everyone to join in. All right, great. So, hi, good evening, everyone. Good evening, Manas. Great. So, ठीक है. I think most of the students have joined in. एक बार मैं क्विक रिकैप कर देता हूँ. हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो मोल कंसेप्ट में देखा था. Yep, this was the mole concept reaction that we did in the last class. Now, in this, हमने series reaction का discussion किया था. All right, followed by parallel reaction. ठीक है. एंड देन हम लोगों ने केस ऑफ इनकम्प्लीट रिएक्शन का जस्ट एक इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था. ऑल राइट, ग्रेट. सो now providing you an overview, let me pick this up from one of the 7 जुलाई का क्लास. आई थिंक मैंने नहीं ऊपर ऊपर कभी तो एक ओवरव्यू दिया था उनको, राइट. So let me just quickly copy this up. So if you remember, हम लोगों ने जस्ट अ सेकेंड, हाँ, एक ब्रॉड आउटलाइन समझने की कोशिश करी थी इस चैप्टर की. सो द स्टार्टिंग पार्ट वाज एन इंट्रोडक्टरी पार्ट जिसमें दीज सब टॉपिक्स वर समथिंग दैट आई डिस्कस्ड विद यू. ठीक है, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट के सब टॉपिक्स थे. एंड आफ्टर फिनिशिंग दीज सब टॉपिक्स वी वेंट ऑन इन द स्टोइशियोमेट्री सेक्शन. ठीक है, स्टोइशियोमेट्री में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है, सीख लिया है. मैं एक बार क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको उस चीज का. सो we understood balancing equation and we understood solving simple reactions. ठीक है, simple reactions है, इनमें primarily हम लोगों ने मोल मोल एनालिसिस के ऊपर फोकस किया था. ठीक है, ऑलराइट. Okay, there are a couple of doubts. क्या क्या हैं शेखर का? Do we have to give the test being conducted on July 27? Shekhar, I don't have the answer.
ठीक है, because I told this last time as well, that depending upon the syllabus and depending upon which batch you joined in, ठीक है, you might be able to give the test, you might not be able to give the test. So that is something which is very case to case, because सब students ने different dates पर join किया हुआ है, right? So that test is primarily for old batches जिनमें mole and atomic का syllabus हो गया है. अगर आपका वो हो चुका है, आप उसी batches में से हो, तो go ahead and join. If not, then you shouldn't. ठीक है. All right. Now, as I was covering, हम लोगों ने बैलेंसिंग इक्वेशन एंड सिंपल सिंपल रिएक्शंस का एनालिसिस किया था इन द फर्स्ट लेक्चर इटसेल्फ, एंड वी मिक्स सर्टेन कॉन्सेप्ट्स इन इट, लाइक परसेंटेज, प्योरिटी एंड समथिंग ऑन दोज लाइंस. देन उसके बाद में मैंने आप लोगों को केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में सिखाया था, राइट? वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लर्निंग्स फ्रॉम दैट केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट वाज दैट आपको क्वेश्चन में लिख के नहीं आएगा that it is a case of limiting reagent or not. You yourself will have to develop this as part of your problem solving methodology, that आप question का data पढ़ के identify करना सीख जाओ कि whether it is going to be a case of limiting reagent or not. ठीक है? So that moles upon coefficient वाला चीज of identifying limiting reagent is something which should become part of your problem solving. ठीक है? Then okay, there's one more doubt. Lakshmi, I don't know. Again, see, ये जो आपके questions है ना associated with the testing portal and how it should be addressed, I would not be able to answer those properly. ठीक है? यहाँ पर it will be better that आप अपने branch के जो coordinator है ना, उनसे एक बार contact करके ये चीज discuss कर लो. Romil, I didn't get your doubt. मतलब you are bit behind in lecture, so should you attend this lecture as in? आपका कवर अप नहीं हुआ है, आप अभी पीछे चल रहे हो. हाँ, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगा. You will find some trouble because see, understand, everything that I am going to talk in a particular lecture will have inputs from the previous lectures, and this is going to be true for all the chapters going forward, be it physics, chemistry or maths. अगर बाय चांस आप लोगों के किसी भी चैप्टर के स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर, 3-4 भी नहीं बोलूंगा मैं, तो 2-3 लेक्चर भी मिस हो जाते हैं ना, एंड आप कवर अप नहीं कर पाते हो, तो आप सोचो कि थर्ड फोर्थ लेक्चर से बैठना शुरू कर देते हैं, ट्रस्ट मी, यू विल एंड अप स्क्रैचिंग योर हेड. You will find yourself in trouble because the methodology of teaching is something which connects the previous learning. So between two chapters, हाँ, जैसे आप फॉर एग्जांपल अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो अपना पैरेलल ट्रैक चल रहा है, उसमें आप बैठ सकते हो, बिकॉज दैट इज समथिंग विच गोज फ्रॉम द स्टार्ट इटसेल्फ. बट मोल में अगर आपका पीछे का छूट गया है, तो प्लीज कवर दैट अप फर्स्ट एंड देन सिट फॉर दीज लेक्चर्स. ठीक है? ऑलराइट, यस. तो कमिंग बैक, यस, जैसे मैं स्टोइशियोमेट्री का आपको बता रहा था, हम लोगों ने केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट कर लिया है, देन सीरीज रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन. सी, कभी भी कोई क्वेश्चन में आपको लिख के नहीं आएगा दैट ये केस है, मैं आपको बता रहा हूँ दैट दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू लुक इन द क्वेश्चन एंड चेक फॉर योरसेल्फ कि अच्छा इस तरीके के क्वेश्चंस को ऐसे हैंडल करना होता है. ठीक है? नाउ व्हाट अगेन माय एडवाइस टू बोथ यू, रोमिल एंड आदित्य, आपको नहीं समझ में आएगा आज का लेक्चर, तो
don't sit, then you should cover up first and then sit in the lectures. Or later you can refer to the recording of this lecture. And फिर आपको कुछ doubts and all रहेंगे तो आप definitely मुझे reach out करना. फर्स्ट लेक्चर है हर्षवर्धन. माय गॉड. हर्षवर्धन, आप पहले ना एक बार कवर अप के लिए आपको थोड़ा बैठना पड़ेगा. लाइक यू विल हैव टू काइंड ऑफ गो बैक बिकॉज वी आर इनटू दिस चैप्टर. आप ना एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर की ट्रैक में फिर भी बैठ सकते हो, बट अभी इस वाले ट्रैक में आपके लिए इट वोंट बी यूजफुल. ठीक है. नाउ इसके बाद मैंने आपको केस ऑफ लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था केस ऑफ इनकम्प्लीट रिएक्शन बताया था. ठीक है. एंड टुडे थोड़ा हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे. आई विल गिव यू वन और टू मोर क्वेश्चंस ऑन द केस ऑफ इनकम्प्लीट रिएक्शन. एंड देन एज स्टोइशियोमेट्री के अंदर लास्ट टॉपिक we are going to talk about a concept called POAC, Principle of Atomic Conservation, which will help you in solving questions जहां पर there will be a particular lack of information. क्या रहेगा कैसे रहेगा मैं आपको बताऊंगा. ठीक है. So today definitely we are going to be able to complete the stoichiometry, and as a result of this, those students who joined on 25th June itself, ठीक है, to name a few like Anu, Ravi, like Kedar, Pratmesh, आप लोगों का कैसा रहेगा that because you joined on 25th of June and हम लोगों ने concentration terms already कर लिया है, so for you guys it will be end of the chapter. ठीक है. So in that case, let's say tomorrow there is this lecture. Okay, I think इस week में हमारे वापस से चारों lecture लगे हैं ना. Let me just quickly check my timetable. So there is this week plan, and there is a lecture today, that is Monday. There is a lecture on Tuesday, that is tomorrow. There is a lecture on Thursday as well, and then there is a lecture on Saturday as well. ठीक है. Now I will need your help to understand आप लोगों के टाइम टेबल में क्या क्या टॉपिक लिखा हुआ आ रहा है. मंडे को मोल लिखा हुआ है, राइट. व्हाट इज रिटन ऑन ट्यूसडे का टाइम टेबल? मोल अगेन. ओके. एंड एटॉमिक फॉर थर्सडे एंड सैटरडे. ओके. ठीक है. ग्रेट, थैंक यू फॉर द क्लैरिफिकेशन, क्योंकि मेरे टाइम टेबल में थोड़ा सा क्लैरिटी कम था, बट हाँ ठीक है. ग्रेट. सो आई होप एवरीवन इज ऑन द सेम पेज रिगार्डिंग दिस. Monday, Tuesday mole concept, and then Thursday and Saturday it is atomic structure in the timetable that you would have received. ठीक है. Great. So what I'm telling is that given the syllabus, given the outline, mole concept आज खत्म हो जाएगा for those students who had joined in on 25th of June. ठीक है. बिकॉज आज मैं स्टोइशियोमेट्री वाला पार्ट खत्म कर दूंगा. रिगार्डिंग द कंसंट्रेशन टर्म्स, इसमें आई विल टेक 2 lectures मोर. ठीक है. सो दिस विल बी फॉर द स्टूडेंट्स हु जॉइंड ऑन 7th of July, और ऑल्सो द स्टूडेंट्स जिनका मोल कंसेप्ट का पार्ट बीच में रह गया था. देयर वर सम स्टूडेंट्स इन आई थिंक 7th में बैच और सम
अदर बैच जिनका कंसंट्रेशन टर्म्स का पार्ट बचा हुआ था, सो वी आर गोइंग टू कवर दैट अप एज वेल. ठीक है. नाउ बुकलेट के लिए डेफिनेटली मानस बुकलेट का होमवर्क मैं आपके साथ करता रहूंगा इन पैरेलल, एंड बुकलेट का डिस्कशन पैरेलल में चलता रहेगा. ठीक है. आई एम टॉकिंग अबाउट द थ्योरी कॉन्सेप्ट्स का पार्ट. ठीक है. ऑलराइट, सो एज आई सेड मंडे को ये करेंगे, ट्यूसडे को विल टॉक अबाउट कंसंट्रेशन टर्म्स. ठीक है. हाँ रुद्र. All right, so continuing from our discussion in the last class, the case of incomplete reaction, or you can say the case of percentage yield. इसके ऊपर let me ask you a question and see how well did you understand the concept itself. So इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. 10 moles of SO2 and 15 moles of O2 were mixed. ठीक है. As a result of the following reaction, SO2 plus O2 is giving SO3. 8 moles of SO3 was formed. Okay. Now I am asking you to determine the ratio of moles of SO2 to SO3 in final mixture. Try करो. ठीक है. And I would want answers from all of you. गलत हो सही हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है. But of late, what I have been noticing is that in the entire group, there are only some 10-12 students जो regularly interact कर रहे हैं and answers दे रहे हैं. See, in the offline mode, I understand that sometimes when students are shy and अपने comfort zone से बाहर आए हैं, एज एन अपने अपने स्कूल से अलग आए हैं और कोचिंग क्लास में आते हैं, तो स्टार्टिंग में शाय रहते हैं, इंटरेक्शन थोड़ा कम रहता है. धीरे धीरे इंटरेक्शन खुलता है. बट अभी ऑनलाइन मोड में तो क्या है, देयर इज नथिंग टू बी शाय ऑफ. यू आर anonymous. ठीक है. So in that case, I don't think you should use that as a reason to be introvert. आप openly discuss करो questions, put forward your thoughts, and make sure that you utilize this opportunity well. ठीक है. And while I'm giving you the questions, ठीक है, take an attempt of answering them. ठीक है. प्रथमेश आपका आंसर गलत है, आर्यन आपका आंसर गलत है, केदार आपका आंसर सही है, जलज आपका आंसर भी सही है. ठीक है. व्हाट अबाउट रावी का क्वेश्चन है, इन एग्जाम्स विल दे गिव अ बैलेंस्ड इक्वेशन? द आंसर इज yes. They should give if it's a not a common one.
ठीक है, but something as common like acid plus base gives salt plus water, और combustion of a hydrocarbon to give you CO2 and H2O, वो सब नहीं मिलेगा. That is something expected. ठीक है. नहीं अनु, नहीं कृषि. नॉट करेक्ट. हाँ पूर्णा, yours is correct. नहीं आर्यन. फाइनल मिक्सचर में पूछ रहा हूँ मैं. हाँ नहीं. आर्यन, मानस, रुद्र, नहीं. गड़बड़. हाँ, सानिका, आपका आंसर उल्टा होगा. हाँ, अर्पित का थॉट प्रोसेस उस डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में सोच रहा था अर्पित. आई विल टेल यू. अर्पित, आप कहाँ पर गड़बड़ हो गए. ठीक है, दैट in fact was the answer that I also gave when I first did this question, which is an incorrect answer, but good to know that you and I are on the same page when it comes to the first attempt. All right, so ha Ravi, right, now your answer is correct. Ha, good Anu, you are also on the same thought. Great, great. मैं भी आप पे की. Good, you and Arpit are on the same lines. ठीक है, so यहाँ पर अब आप ऑब्जर्व करना that one of the learning from this question is that you will have to identify that it is a case of incomplete reaction. Now what happens is that when you look at the data that is given in the question, okay, what you find out is SO2 is the limiting reagent. Okay, in the start there is 10 moles of SO2 and 15 moles of O2. Okay, so what you thought was that SO2 is the limiting reagent. Okay, and the learning from the concept of limiting reagent that we have is that at the end of the reaction the limiting reagent is completely consumed. ठीक है, जब reaction 100% हो जाता है. ठीक है, so in the end if I am being asked the ratio of moles of SO2 to SO3, ठीक है, then shouldn't it be 0 to something. ठीक है, which essentially comes out to be 0. That is what the common doubt would be. ठीक है. हाँ लक्ष्मी, आपका आंसर भी सही है. So what would happen is that that will be the common thought that comes in our mind. ठीक है. However, अब यहाँ पर आप observe करना that if this was the case, ठीक है, if the reaction was going to 100%, then how much of SO3 should have formed. ठीक है, if you look at the coefficients of SO2 and SO3, they are both 1. So if 10 moles of SO2 got consumed, it should have given 10 moles of SO3. ठीक है. So however, when you look at or read the question ka data, only 8 moles of SO3 are formed. So that kind of gives you the idea that there is something else in the question as well. That maybe what happened was that the reaction didn't go to end. In between, somewhere the reaction got stopped. Okay? This is what the hint that comes from the question. So let me write it down in terms of a sentence or two. Right? This is something, jahan par the critical part is that you yourself will have to identify if it is a case of limiting reagent or not. Okay?
So the statement would be something in this manner. Let me make you write it. That superficial analysis reveals कि SO2 is the limiting reagent. So let me write it here. Superficial analysis shows SO2 is limiting reagent, right? This leads to an assumption that SO2 is completely consumed. Okay, by the end of the reaction. However, a deeper analysis helps understand that the reaction is incomplete. Now, how do I get that incomplete idea? Is why because 10 moles of SO2 should form 10 moles of SO3, but only 8 moles are formed. ठीक है? Now, as a result, अब अगर मेरे को एनालिसिस करना है तो यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करना. अब मुझे ये इन बिटवीन वाले पार्ट का एनालिसिस करना है. ठीक है? सो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, अगर मैं ये मान लूँ कि SO2 के x मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं. ठीक है, SO2 के x मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं, तो इसका मतलब O2 के कितने मोल्स कंज्यूम होंगे? O2 के x/2 कंज्यूम होंगे, है ना? और SO3 के कितने बन जाएंगे? x मोल्स. ठीक है. Now if I look at the moles which are actually present in between, so because ये 10 से स्टार्ट किया था और x मोल्स कंज्यूम हो गए, तो एक्चुअली में SO2 के कितने हो गए? 10 - x. O2 के 15 से स्टार्ट किया था, राइट, एंड x/2 खत्म हो गए. Why did x/2 get over? Because of the coefficient. ठीक है. एंड SO3 के कितने फॉर्म होंगे? एज यू कैन सी स्टार्टिंग में 0 थे और x फॉर्म हो गए हैं, तो SO3 के कितने रहेंगे? x मोल्स रहेंगे. ठीक है, ये एनालिसिस वाला पार्ट मैं एक बार दोबारा रीआइट्रेट कर देता हूँ. ठीक है, मेरा रिएक्शन इन बिटवीन कहीं पर रुक गया है. अब वो इन बिटवीन में क्या सिचुएशन होगी, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड. कि लेट मी से कि x मोल्स of SO2 got consumed, तो as a result O2 के x/2 moles consume होंगे and SO3 के x moles produce होंगे. How? You look at the coefficients. ठीक है. Now once you look at the coefficients, you got this answer that how their moles consumed or reacted or produced are. ठीक है. अब SO2 के कितने मोल्स रहेंगे? ठीक है, मतलब या तो मैं इसमें वापस से वैसे ही लिख देता हूँ जैसे हम लोग पहले लिखते थे. यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिएक्टेड प्रोड्यूस्ड -x - x/2 + x. तो कितने बचेंगे? यू विल गेट टू नो दैट इनिशियली 10 थे, तो 10 - x मोल्स बचेंगे. O2 के इनिशियली 15 मोल्स थे और x/2 मोल्स कंज्यूम हो गए, तो 15 - x/2 बचेंगे. एंड SO3 का इनिशियली 0 था और x मोल्स प्रोड्यूस हुए, तो एंड में x मोल्स रहेंगे. ठीक है. And the catch is that this is what is given to you as 8 moles. ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है that SO3 के 8 moles फॉर्म हो रहे हैं. So now you can do the analysis of this in between situation, saying that moles of SO2 upon moles of SO3 will be 10 - x upon x, and x की value is 8. Right, so 2/8 or 1:4 will be my correct answer. ठीक है.
राइट. सो हाँ, एंड में आप लोगों ने कुछ प्रथमेश, लक्ष्मी, सुमित, राइट, आप लोगों ने एंड में आंसर दिया था, राइट, so that is correct. You got the answer a little late, but yes, you got the correct answer. The primary learning in this question was that question में लिख के नहीं आया. ठीक है, क्वेश्चन में लिख के नहीं आया what is the case it belongs to. It was from the data of the question only that I had to decipher that okay, it is a case of incomplete reaction. ठीक है, maybe this question would have been slightly easier. ठीक है, it would have been slightly more intuitive if I would have also asked another question as part of this existing question. If I would have asked that determine the percentage completion of reaction. ठीक है, let's say अगर मैं यहाँ पर ये भी ऐड कर दूं, ठीक है, if I add this all the statement also determine percentage completion of reaction, so maybe a lot of you would have been now able to get the answer right because of the fact that मैंने बोल दिया है कि अरे इनकम्प्लीट रिएक्शन है, तो आपका दिमाग शायद ज्यादा अच्छे से दौड़ता. ठीक है, वैसे क्या आंसर रहेगा परसेंटेज कंप्लीशन का? हाँ जलज. सानिका, what are you doing? You gave me the correct answer to the previous question and अभी आप गलत आंसर दे रहे हो. प्रथमेश, परसेंटेज कंप्लीशन पूछा है, तुम क्या आंसर दे रहे हो? हाँ केदार, दैट्स करेक्ट. नहीं नहीं सानिका, 20% तो बच जाएगा, 80% रिएक्शन हो जाएगा ना. राइट ऋग्वेद. अरे आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में डेफिनेशन बताया था ना परसेंटेज कंप्लीशन का. सो बी पार्ट अगर आप देखोगे परसेंटेज कंप्लीशन के बारे में मैंने क्या बोला था. परसेंटेज कंप्लीशन या तो आप रिएक्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड. ठीक है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है, रिएक्टेंट में भी अगर मल्टीपल है तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से सोचना है. अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड अपॉन इनिशियल amount of reactant into 100%. So you would have 8 moles reacting out of the 10 moles. So you get the answer na, that the percentage completion is 80% only. You could have very well thought it from the product perspective also कि अरे 10 मोल बनना चाहिए था. ठीक है, 10 मोल बनना चाहिए था पर बना 8 मोल ही. राइट, सो इट इज ओनली 80% कंप्लीट. 3/4 क्या कर रहे हो सुमित? व्हाट इज 3/4? Where did you get that 3/4 from? Yeah, even I am confused, Pratmesh. I don't know where did Sumit get 3/4 from. All right. So ये वाला question समझ में आया? Like this was in continuity to what we had done in the last class. Let me take one more question on this percentage yield or case of incomplete reaction. And इसमें भी मैं एक और कॉन्सेप्ट मिक्स कर दूंगा. ठीक है, एकदम प्योर प्ले परसेंटेज कंप्लीशन का क्वेश्चन नहीं रहेगा. देयर विल बी समथिंग एडेड ऑन टू इट. ठीक है, सो लेट्स सी इफ यू आर एबल टू फिगर दैट आउट. Pure O2 is converted to O3 in a reaction vessel. ठीक है, if at a certain time average molecular weight of mixture is 40 gram per mole.
then determine percentage completion of reaction at this point. So यहाँ पर along with the case of incomplete reaction, I mix the concept of average molecular weight of gaseous mixture. देखो, if you are able to figure out. सुमित, आपका डाउट बहुत जनरल है, मतलब I will not be able to address such a general doubt. You will have to be more specific. नहीं जलज, आपका आंसर करेक्ट नहीं है. राइट राइट, आई अंडरस्टैंड सुमित. सो इसमें आपको ना फिर पहले बेसिक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? क्योंकि क्लास में जो भी मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ ना, क्लास में जो एग्जांपल्स आई एम डिस्कसिंग, दे आर अबव एवरेज डिफिकल्टी, ठीक है? मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे, नहीं नहीं, नॉट सुमित पाल, देयर इज सुमीत, SUMEET. सो सुमित, ये जो क्वेश्चन मैं क्लास में डिस्कस करता हूँ ना, दे आर अबव एवरेज डिफिकल्टी. मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस हैं दैट मतलब अभी भी मैं क्लास 12th के बच्चों को ये क्वेश्चन दे दूंगा तो देयर इज नो गारंटी दैट ऑल द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू देम, ठीक है? ये वाले क्वेश्चंस जो हैं, इनमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? तो इफ़ यू आर स्टक विद द बेसिक वन, तो आपको बेसिक्स के साथ में पहले थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा. बेसिक क्वेश्चंस आपको पहले फोकस करने चाहिए rather than getting into the difficult one. Develop that problem solving approach and then you will be able to gain some confidence, ठीक है? मैं ग्रुप पर ना एक असाइनमेंट शेयर करूंगा which will be on the lighter side. एक हेवियर साइड पे भी शेयर करूंगा, एक लाइटर साइड पे भी शेयर करूंगा. ऑल राइट, सो नहीं, सुमित पाल, मानस, प्रथमेश, आर्य, जलज, नहीं, किसी का भी आंसर सही नहीं है अभी तक. ठीक है, इसमें जो अप्रोच मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, देयर इज वन वेरी बेसिक अप्रोच दैट आई टेल यू व्हाइल सॉल्विंग मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन, कि आप एटलीस्ट रिएक्शन लिखो, ठीक है, एंड आप एनालिसिस तो लिखो, ठीक है? राइट डाउन द रिएक्शन एंड देन राइट डाउन द एनालिसिस, ठीक है? हो सकता है वेरिएबल लेके लिखना पड़े, बट लिखना तो शुरू करो. यू माइट एंड अप गेटिंग समथिंग, ठीक है? हाँ, सुरावी का आंसर सही है. ऋग्वेद, नहीं, आपका आंसर सही नहीं है अभी. हाँ, so इसमें the reaction will be simply this: 3O2 is giving 2O3. This is your reaction, ठीक है? चलो, मैंने इतना हेल्प कर दिया, रिएक्शन लिख दिया मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है? वैसे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही लिखा है, O2 is getting converted into ozone, so I didn't
नो कि आप रिएक्शन पे अटक जाओगे, बट ठीक है चलो, अगर मैंने रिएक्शन भी आपको बता दी, चलो मैं थोड़ा सा और हिंट दे देता हूँ, ठीक है। लेट मी गिव यू अ हिंट, लेट्स से स्टार्ट से इसके ए मोल्स हैं, ठीक है। चाहिए तो मैं 1 से भी स्टार्ट कर सकता था, क्योंकि आप नोटिस करोगे तो पूरे क्वेश्चन में कोई हार्ड डेटा नहीं है कितने मोल्स हैं। आई कुड हैव वेरी वेल स्टार्टेड बाय सेइंग ए मोल्स, ठीक है, और 1 मोल, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ could have taken a variable as well, ठीक है। आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, बट लेट से मैंने स्टार्ट कर दिया 1 मोल से, ठीक है। देर इज नो O3, ठीक है। एंड डेफिनेटली द रिएक्शन इज नॉट गोइंग टूवर्ड्स द एंड, ठीक है। ये कहीं इन बिटवीन में ही रुक जाएगा, ठीक है, कहीं इन बिटवीन में रुक जाएगा, तो आपको उसका एनालिसिस करना है, ठीक है। नाउ आई एम फर्दर गिविंग यू मोर हिंट, ठीक है। हाँ प्रथमेश, आपका आंसर सही है। आई एम गिविंग यू मोर हिंट। अरे नहीं, सानिध्य, सानिध्य ऑफ लेट तुम्हारा थोड़ा एज जा रहा है, तुम करेक्ट आंसर नहीं दे रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहीं भटक गया, भटकते नहीं क्या? या ऐसा हो सकता है तुम ज्यादा मैथ्स या फिजिक्स पढ़ रहे हो। लेट मी बी मोर ऑन दैट पॉजिटिव साइड। राइट, कमिंग बैक, सो मान लो कि इसके एक्स मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो O3 के कितने मोल्स बनेंगे? ओजोन के कितने मोल्स बनेंगे? कैन यू सी 2/3x, राइट। सो व्हाट विल हैपन दैट कहीं पे भी, जहां भी वो इन बिटवीन पॉइंट के बारे में बात कर रहा है, वहां पर O2 के 1 - x मोल्स हैं और O3 के 2/3x moles hai. Now, do you have some data point in the question to solve for the value of x? अच्छा सानिध्य, ठीक है, अंडरस्टैंड। अभी आप लोगों के आंसर आने चाहिए करेक्ट, इतना मैंने करके दिखा दिया भाई, इसके आगे मेरी जान लोगे क्या? नहीं दिशा, वैष्णव, हाँ, ये वाले आंसर्स नहीं है, देखो आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हो। हाँ सुरावी, आपने दे दिया था करेक्ट आंसर, आई एक्नॉलेज्ड। नहीं ध्रुवा, हम्म। हाँ अर्पित, आपको चाहिए तो मत लो, डोंट टेक इनिशियल मोल्स एज 1, टेक अ वेरिएबल। It's just that in order to make the calculations look easier, I took 1 moles to start with. नहीं कृषि, नहीं सुमित, why are the moles equal? ये थोड़ी ना डेटा दिया हुआ है कि मिक्सचर के अंदर इक्वल मोल्स हो गए। um, हाँ एक्चुअली ठीक है, राइट राइट राइट। हाँ सुमित, सुमित ठीक बोल रहे हो, ओके। एक्स सॉल्व करने के लिए देखो ना डेटा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। द डेटा गिवन is just one piece of information that the average molecular weight is 40 ग्राम पर मोल। तो ये जो मिक्सचर है इसका
एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इज 40 ग्राम पर मोल। अब मैंने आपको ये चीज सिखाया हुआ है दैट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस कैसे निकालते हैं। इट इज टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, राइट। सो 1 माइनस एक्स इंटू 32 प्लस 2/3x इंटू 48 upon 1 minus x plus 2/3x is equal to 40। ये समझ में आया। सो इससे आपका x का वैल्यू आ जाएगा 3/5। नाउ परसेंटेज कंप्लीशन या परसेंटेज रिएक्शन क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ O2 रिएक्टेड अपॉन इनिशियल मोल्स of O2 into 100%. So that would be 3/5 upon 1 into 100%, that is 60%. That is what your answer will be. Now, जिसके गलत आंसर आए, first of all, it is a very good thing that you took an attempt and you thought of something to give an answer to. It is much better than those who are just sitting with their pens lying somewhere and listening this as a pravachan. You did take an attempt, that's a really good thing. And आपका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है फोकस करने के लिए वो ये है दैट आपने गलती कहां पर करी, वेयर डिड यू मेक दैट मिस्टेक, आइडेंटिफाई दैट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सुमित, आपने कहां पे गलती करी, कैन आई आस्क यू टू अनम्यूट एंड टेल मी। हाँ, सो मैं एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करो। ये सिंपल सा क्वेश्चन था आपके सामने। दिस वाज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू दैट O2 is converted to O3 in a reaction vessel, ठीक है। If at a certain time average molecular weight of mixture is 40, then determine the percentage completion of reaction at this point, ठीक है। Now ये चीज का रिएक्शन कुछ इस तरीके से रहेगा, 3O2 gives 2O3, ठीक है, that is the balanced reaction. Now even if question would not have mentioned that this is a case of incomplete reaction, I would have identified it by myself. कैसे? Because O2 का molecular weight होता है 32 and O3 ओजोन का molecular weight होता है 48। तो अगर रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ O2 ही प्रेजेंट होता, तो द molecular weight of the mixture would have been just 32। एंड मान लो अगर रिएक्शन पूरा हो जाता, ठीक है, O2 would have been consumed completely, all of it would have been converted into ozone, right? Then my molecular weight would have been 48, ठीक है, that is the molecular weight of ozone, but as per the data in the question it is given as 40। so मुझे यहीं से पता पड़ जाता कि okay, maybe the reaction stopped somewhere in between, ठीक है। Now, how do I analyze that? How do I work on it? I fall back onto the format of analysis that I have studied. Start, reacted, produced, and what happens in the end. Okay? In this case, the end is not 100% completion, but somewhere in between. Okay? But the format of analysis remains the same. And this I did in terms of moles only. Now, initially, there is 1 mole. Well, that is not given in the question. If you want, I can take it to be a variable, ठीक है। Let me take this as A moles, ठीक है, मुझे नहीं लेना है 1 मोल से क्योंकि मुझे डेटा दिया ही नहीं है, ठीक है। सो लेट्स से मैंने 1 मोल ले लिया, सॉरी A मोल ले लिया। अब A में से क्या होगा, कुछ रिएक्ट होगा, कुछ प्रोड्यूस होगा। तो मान लेते हैं कि
O2 में से x मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं, तो ओजोन के कितने प्रोड्यूस होंगे, राइट? अगेन यू विल हैव टू डू अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड यू विल गेट द आंसर दैट O3 के 2/3 मोल्स 2/3 into x मोल्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है? एंड यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लर्निंग है, ठीक है? द लर्निंग दैट इज हियर इज डोंट हेजिटेट इन टेकिंग वेरिएबल्स, ठीक है? sometimes this is one of a very big inhibition that I find in students, that they tend to अटक जाते हैं कि अरे अब आगे क्या करें, आगे क्या करें। अरे आप कुछ मान लो ना, अगर ये वेरिएबल मान लूंगा मैं तो शायद उससे कुछ लिखने को मिले, हो सकता है वेरिएबल सॉल्व हो जाए, हो सकता है वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाए, राइट? दैट इज समथिंग अप टू यू, आप करके तो देखो। नाउ वंस यू टेक दिस, देन व्हाट विल हैपन, अगर a में से x मोल्स चले गए तो O2 के कितने मोल्स बच जाएंगे, a माइनस एक्स, है ना? a माइनस एक्स मोल्स O2 के बच जाएंगे, एंड O3 के कितने बन जाएंगे, 2/3 into x। नाउ अब हाउ डू आई सॉल्व फॉर, ठीक है? मेरे पास एक्चुअली मैंने दो वेरिएबल क्रिएट कर लिए हैं, एक a क्रिएट कर लिया है और एक x क्रिएट कर लिया है, बट आई लुक एट द क्वेश्चन तो उसमें तो एक ही डेटा पॉइंट दिया हुआ है 40 ग्राम पर मोल वाला, ठीक है? सो आई वुड बी अ लिटिल स्केप्टिकल एट दिस पॉइंट, ठीक है? आई माइट बी अ लिटिल, नहीं श्रेया, 2/3 ax क्यों फॉर्म होगा, x मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं ना, ax मोल्स थोड़ा ना कंज्यूम हो रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको एनालिसिस करने के लिए बोलूंगा O2 एंड O3 के बीच में, O2 का कोफिशिएंट 3 है, O3 का कोफिशिएंट 2 है, इसके अगर x कंज्यूम हो रहे हैं तो इसके कितने प्रोड्यूस होंगे, तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है? आई होप दिख रहा है। ax कहाँ से आ जाएंगे, ठीक है? सो या now, as I said that this is the only data that is given in the question, that the average molecular weight of the mixture 40 gram per mole is given to you, okay? So now you applied the concept that you knew, you applied the formula that average molecular weight of the mixture is like in this formula, right? This is something which should strike, ठीक है? This is something which should click। ये अगर क्लिक नहीं हो रहा है, ठीक है, तो फिर उसमें मैं थोड़ा सा हेल्प नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? दिस इज प्योरली योर एबिलिटी टू कनेक्ट द डॉट्स, दिस इज प्योरली योर एबिलिटी टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट्स दैट यू हैव लर्नड, ठीक है? इसमें प्रैक्टिस से ही ये चीज बन पाएगी। अगर आपको क्लिक करके आप ये फॉर्मूला देख के अब आप फॉर्मूला में डेटा सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये कैसा रहेगा, यहाँ पर ये a माइनस एक्स इंटू 32, a माइनस एक्स मोल्स है ना इसके, एंड इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट x अपॉन a, ठीक है? once you will solve you will get x upon a as 3/5, and look what is being asked in the question, that is itself that is being asked, that moles reacted is x and initial moles is a, so आपसे पूछा ही x upon a जा रहा है, that percentage completion, so you substituted that value right over here, that this will be 3/5, the x by a value, and the percentage completion would be 60%, ठीक है? 32 is the molecular weight of oxygen gas and 48 is the molecular weight of ozone gas। ये फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है, मतलब अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगा दोस्तों। ये जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करा है, दिस फॉर्मूला इज समथिंग विच शुड बी समथिंग दैट यू रिमेंबर, ये सिखाया गया है आपको, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला क्या होता है।
Now, so this was again, this was something taught in the initial lectures, Arpit. दूसरे दूसरे तीसरे तीसरे लेक्चर में होगा आई थिंक, मे बी. तो कॉन्सेप्ट सारे काम आते जाएंगे, इंटरलिंक होते जाएंगे. ऑल राइट, सो या आई थिंक अभी आप लोगों को परसेंटेज कंप्लीशन का पार्ट थोड़ा क्लियर हुआ है, थोड़ा समझ में आया है. नाउ लेट मी bring to you the next concept which is called as POAC. ठीक है, principle of atomic conservation. ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या रहेगा? Atoms are neither created nor destroyed during a chemical reaction. They just change the molecule which they were part of. Reactant side पे किसी और molecule में होंगे, product side में किसी और molecule में present हो जाएंगे, but they are neither created nor destroyed. That is, their numbers are conserved. Their numbers are conserved. Now, this is the same concept that we use while balancing reactions. We use this, तो ये कुछ नया नहीं है. We use the same concept while balancing reactions. याद है कि नहीं याद है? हम लोग जैसे करते हैं कि CXHY plus O2 is giving CO2 plus H2O. तो हमने क्या करा था? X atoms लेफ्ट साइड है तो X atoms राइट हैंड साइड होने चाहिए कार्बन के. Y atoms हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड है तो Y atoms राइट हैंड साइड पे होने चाहिए. And we were able to then balance this equation. Right? So उसी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस करना, ये इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. Does this concept becomes very helpful in case we don't have sufficient knowledge of reaction. So through this concept, what will happen is we will be able to establish a relationship between reactants and products without balancing the equation. Okay, so that is what is going to be useful to you. So using EOAC, we can establish relationship between reactants and products without a balanced equation. ठीक है, जब बैलेंस्ड इक्वेशन होता था तब हम लोग कैसे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते थे? वो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कोफिशिएंट्स को यूज करके. ठीक है, या मैथमेटिकली बोलूं अगर मैं, तो मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट इक्वल टू मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट लिखकर. ठीक है, दैट इज हाउ वी यूज्ड टू work with the balanced equation. But let's say if we don't have a balanced equation, ठीक है, there is insufficient knowledge, then how will POAC help? तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, let me try to explain it using a simple example. So CH4 plus O2 is giving CO2 plus H2O. ठीक है, let's say I don't want to balance this equation. In this case, so definitely I can, but let's say मुझे balance नहीं करना है, and still I want to write a relationship between reactants and products. ठीक है, so what I will do is I will apply POAC.
and I will apply POAC as a concept on particular element. Okay, so let's say I apply POAC on oxygen. Okay, what I will say is that moles of oxygen atom, ठीक है, on left hand side यानी कि reactant side should be equal to moles of oxygen atom on right hand side. ठीक है, now left hand side पर नहीं वैष्णव, we can apply. ऐसा नहीं है we can't apply POAC on oxygen or anything. We can. हाउ सर, वही तो मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा पेशेंस तो रखो, देखो तो सही. So moles of oxygen atom on left hand side should be equal to the moles of oxygen atom on the right hand side. अब left hand side पर oxygen किधर present है? On left hand side it is present in O2 only, right? So if someone gave me moles of O2, then if I multiply it by 2, I will get the moles of oxygen atom, right? If someone gave me moles of O2 and I multiplied by 2, right, because the subscript says so, यहाँ पर subscript में 2 है, I will get the moles of oxygen atoms. ठीक है, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड सॉर्ट हो गया. राइट हैंड साइड पर मैं देखूंगा तो ऑक्सीजन CO2 और H2O दोनों के अंदर प्रेजेंट है, राइट. सो इफ समवन गिव्स मी मोल्स ऑफ CO2, ठीक है, if someone gives me moles of CO2 and I multiplied by 2, I will get the oxygen atoms, as well as I will have to add moles of H2O multiplied by 1, क्योंकि एक H2O के मॉलिक्यूल में एक ही ऑक्सीजन है, तो I'll have to multiply it by 1, and this will give me the total oxygen on the right hand side. ठीक है, so what I did by applying is that I established a relationship between reactants and products without balancing. ठीक है, I could have established the relationship by balancing also, ठीक है, but I did that without balancing. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और कराने दो, ठीक है. Let me do one more example and you will find yourself more clear on this concept of how we are applying this. ठीक है, ये मैंने बहुत ही सिंपल एस्पेक्ट लिया, ठीक है. अच्छा, अगर इसी में चलो मैं थोड़ा सा इलाबोरेट कर देता हूँ. अगर मान लो मुझे POAC ऑन हाइड्रोजन अप्लाई करना होता, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर हाइड्रोजन कहाँ पर है? सिर्फ मीथेन में, ठीक है. मोल्स ऑफ H, ठीक है, मोल्स ऑफ H एटम on left hand side should be equal to moles of H atom on right hand side. ठीक है, अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर हाइड्रोजन किसके अंदर है? CH4 के अंदर. So if someone gave me moles of CH4 and I multiplied by 4, I'll get the moles of hydrogen. And if someone gave me moles of H2O, I'll multiply it by 2 and I'll get the moles of hydrogen on the right hand side. So again, I established a relationship between reactants and products without balancing the equation. ठीक है, so इस तरीके से I can use this concept to solve certain tricky questions such as this one. ठीक है, एक example follow करना and try to get an answer. 27.6 gram of K2CO3
undergoes a series of reaction to convert all its carbon into K3Zn2 or sorry K2Zn3 FeCN6 whole twice. Determine the mass of K2Zn3 FeCN6 whole twice reduced. Okay. Now atomic weight of potassium is 39, zinc is 65, iron is 56 and rest तो आपको पता ही है. ठीक है. हाँ बस इतना ही information है. There is no more information in this question and that is what you should be now using to solve. ठीक है एक बार कॉपी कर लो. नहीं जलज प्रथमेश आपका आंसर सही नहीं है. सुमित हाँ आपका आंसर सही है. लक्ष्मी आपका आंसर भी सही है. उजल नहीं. रावी यस. राइट सो इसमें क्या हो रहा है दैट नाउ लेट मी सॉल्व फॉर एवरीवन दैट the first thing that you are struggling is with what is the reaction. Okay, the answer is I don't know. This actually gives you the hint. If you don't know what the reaction is, maybe apply POAC. Okay, it might lead to you somewhere. Acha, then the next question that comes to you is apply POAC on which element. ठीक है यहाँ पर आप देखोगे K2CO3 it undergoes some series of reaction. I don't know what reactions, but what it forms is K2 Zn3 FeCN6 whole twice. ठीक है. Now as per the data of the question that is given to you, ठीक है,
यहाँ पर कार्बन इज द एलिमेंट दैट यू शुड अप्लाई द पीओएसी ऑन। ठीक है, आपको यहाँ पर दिखेंगे दो चॉइस है, एक पोटेशियम दिख रहा होगा, एक कार्बन दिख रहा होगा। ठीक है, बट द फैक्ट इज दैट पोटेशियम के बारे में बोला नहीं है, कार्बन के बारे में क्वेश्चन में बोला जा रहा है, दैट इट इज कार्बन दैट इज getting conserved. So you apply POAC on carbon. Why? Because the question says so. That जितना कार्बन लेफ्ट हैंड साइड था वही कार्बन राइट हैंड साइड पे आ जाएगा. So moles of carbon on LHS should be equal to moles of carbon on RHS. Right? Now moles of carbon into LHS would be equal to 1 into moles of K2CO3. Right? Because एक K2CO3 के अंदर एक ही कार्बन है. And right hand side पे अगर आप देखोगे, if someone gives me moles of this compound, if someone gives me moles of K2 Zn3 FeCN6 whole twice, then इसके अंदर कितने कार्बन एटम्स है within this molecule? As you can count, there are 12 कार्बन एटम्स. सो अगर कोई मुझे इस कंपाउंड के मोल्स दे देगा तो मैं उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो I'll get the moles of carbon. Right? So here you got the relationship between reactants and products. Now this is going to be 27.6 grams. This is 27.6 grams and K2CO3 का molecular weight कितना होगा? So 39 into 2 plus 60, 138. ये इसका molecular weight है. एंड यहाँ पर इसका molecular weight आप निकालोगे, थोड़ा टाइम लगेगा बट कैलकुलेट करने में हो जाएगा. 2 into 39 plus 3 into 65 plus 2 into 56 plus 12 into 12 plus 12 into 14, 697. ये इसका molecular weight आ रहा है. ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ये 11.6 ग्राम्स आएगा. ठीक है, सो इसमें क्या था, देयर इज नो नीड टू राइट द रिएक्शन. ठीक है, देयर इज नो नीड टू राइट द रिएक्शन. ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट इंश्योर दैट you are applying POC on the correct element. ठीक है, now होगा इसका कोई बैलेंस रिएक्शन, मुझे नहीं पता है. I don't want to actually get into the details of it, that what could be the balanced equation. ठीक है, मुझे आता ही नहीं इतना वो कॉम्प्लिकेटेड सा देखकर, I myself will get confused. So that is the reason I am not getting into that detail of equation. मुझे बस इतना दिया है कि हाँ कार्बन कंजर्व हो रहा है. ठीक है, now let me ask you to do one more question on this and let's see how you are able to do it. Hmm. All right, ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो and don't ask me anything about the question, like it is a question which is given to you. मान लो एग्जाम में हो, अब मैं तो आऊंगा नहीं बताने के लिए क्या करना है कैसे करना है, आप ही को सॉल्व करना है. हाँ, पीओएसी का मेथड जो है वो आप बैलेंस्ड इक्वेशंस पे भी लगा सकते हो. ठीक है,
मुझे नहीं आइडिया है रोनन, क्लोरीन वाटर क्या होता है? स्विमिंग पूल का पानी होगा मे बी। हाँ, ऋग्वेद, लक्ष्मी, रावी, यस करेक्ट आंसर। सॉन्टी नहीं, दैट्स नॉट करेक्ट। जलज यस, अलीना यस, श्रेयस, उजल राइट। नहीं नहीं, हाँ अनु करेक्ट है। शेखर क्या कर रहे हो तुम? सिंपल क्वेश्चन है। हाँ सानिध्य। नहीं प्रथमेश, गड़बड़ कर रहे हो। ऑलराइट, सो मैं बताता हूँ इसको कैसे आप करेंगे। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यस। नाउ again, see when I read the question, सल्फर प्लस O2 से SO2 बनेगा, आई एम लाइक गुड ग्रेट। देन SO2 प्लस क्लोरीन वाटर, आई डोंट नो व्हाट इट डज, मतलब आई डोंट इवन नो व्हाट क्लोरीन वाटर मींस। ठीक है, मे बी आई डोंट नो द रिएक्शन। नाउ समथिंग हैपेंस टू दिस when it is treated with BaCl2. I don't know the complete reaction, but what it says is that barium sulfate बन जाता है। ठीक है, so what I have here is again lack of knowledge of reaction। तो मुझे यहीं पे स्ट्राइक हो जाएगा कि यार चलो POAC अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसके बारे में दिया हुआ है 8 ग्राम्स और इसके बारे में आपसे पूछा हुआ है कितने मोल्स होंगे, है ना। सो अब मुझे आइडिया ही नहीं है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मे बी द ओनली थिंग दैट कम्स टू माई रेस्क्यू इज apply POAC on sulfur. So 1 into moles of sulfur should be equal to 1 into moles of barium sulfate. Why 1? Because that is how many atoms are there in one molecule of barium sulfate. तो अगर barium sulfate के आपको moles मिलेंगे X, तो sulfur के भी moles X ही होंगे। ठीक है, so यहाँ पर you get 1 into your moles of barium sulfate and you get the answer as D option। ठीक है, so this is how you apply POAC। See, अभी तक क्या हो रहा था, इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस करे थे ओवर द लास्ट 4-5 lectures or so, all of those questions were something where you always started with a reaction। ठीक है, आपको या तो रिएक्शन पता होता था या आपके सामने रिएक्शन आपको लिखना आता था। ठीक है, बट समटाइम्स if you don't have that in front of you, then how do you go, about it? ठीक है, all right, let me give one more question। ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लेट मी सी।
See, you can apply POAC on balanced equation as well. I don't mind. ठीक है, इनफैक्ट मैं आप एक नोट के फॉर्म में लिखा देता हूँ. Note, we can apply POAC on balanced equations as well. ठीक है, the only caution that you have to take is जिस एलिमेंट पर POAC अप्लाई कर रहे हैं ना, वो एलिमेंट कंजर्व होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एलिमेंट साइड प्रोडक्ट्स में चला जाए, ठीक है, या किसी साइड रिएक्शन में चला जाए. वैसा नहीं होना चाहिए. दैट एलिमेंट शुड बी कंप्लीटली गोइंग फ्रॉम रिएक्टेंट साइड टू द प्रोडक्ट साइड. ठीक है. नाउ ऑब्जर्व करना, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई बैलेंस्ड इक्वेशन है. लेट्स से यू हैव मैं चलो यहीं से उठाता हूँ. लेट मी टेक सम क्वेश्चंस इक्वेशंस फ्रॉम हियर. इनमें तो ये फैल रहा है. There are some series reactions. चलो, something of this nature. मान लो ऐसा रिएक्शन था, KClO3 को हीट करा तो KCl प्लस O2 बना. ठीक है, चाहिए तो बैलेंस भी कर दिया. एंड अल्यूमिनियम प्लस O2 मिक्स कर दिया. ठीक है, तो इससे Al2O3 बन गया. ठीक है, और ये बैलेंस भी कर दिया मैंने. ठीक है, अब आपको बोला है कि हमारे पास इसका 1 ग्राम है, तो इसका कितना ग्राम्स बनेगा. ठीक है, लेट्स से अगर इस तरीके से है, तो अब क्या हो सकता है दैट आपको चाहिए तो आप जैसे पहले जाते थे स्टेप बाय स्टेप सीरीज रिएक्शन करके पूरा सॉल्व करो. और यू कैन से दैट यू कैन सी कौन से एलिमेंट पर POAC लगाना एप्लीकेबल रहेगा. अप्लाई POAC ऑन ऑक्सीजन. कैन यू सी दैट ऑक्सीजन जितना यहाँ पर था वो पूरा कंजर्व हो गया. ठीक है, यहाँ से जितना ऑक्सीजन था वो यहाँ निकला और वो यहाँ पे यूज होके इधर आ गया. ठीक है, बीच में उसका कोई भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ. देयर वाज नो एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस एनीवेयर इन बिटवीन. ठीक है, तो ये आपने इक्वेशन से देखा और समझा. अब आप क्या बोलोगे, आप सिंपली कर दोगे 3 इंटू मोल्स ऑफ KClO3. ठीक है, इनफैक्ट लेट मी बैलेंस दिस इन दिस मैनर ताकि आप लोगों को और भी कोई कंफ्यूजन ना हो. लेट्स सी, मैंने इसको इस तरीके से बैलेंस करके लिखा. ठीक है, इस तरीके से बैलेंस करके लिखा मैंने. तो क्या होगा इसमें, देखो जो सब्सक्रिप्ट है ना वो इंपॉर्टेंट है, कोफिशिएंट नहीं. सब्सक्रिप्ट इज इंपॉर्टेंट. डोंट वरी अबाउट द कोफिशिएंट. तो अगर कोई मुझे मोल्स ऑफ KClO3 दे देगा, ठीक है, तो उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ना. एक बार के लिए रिएक्शन भूल जाओ. कोई मुझे मोल्स ऑफ KClO3 दे देगा तो ऑक्सीजन कितना होगा उसके अंदर, आई विल जस्ट मल्टीप्लाई बाय 3 ना. मुझे कोफिशिएंट से थोड़ा फर्क पड़ता है. कोफिशिएंट कल को यहाँ पे मैं 4 भी बना दूं, 6 बना दूं, क्या फर्क पड़ रहा है. ठीक है, सो POAC को कोफिशिएंट से फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज POAC का तरीका यही है. POAC इज एन ऑल्टरनेट मेथड टू बैलेंसिंग इक्वेशन. हम लोग जब बैलेंस इक्वेशन से कर रहे थे तब हमारे लिए कोफिशिएंट बहुत मैटर कर रहे थे. ठीक है, बट POAC cuts through all of that. It just said okay, oxygen is getting conserved, so 3 into moles of KClO3 should be equal to 3 into moles of Al2O3. क्यों, क्योंकि आप देखोगे, forget about the reaction का कोफिशिएंट्स, एक जितने मोल आपको Al2O3 के दे दिए
उसमें अगर मैं आपसे पूछूंगा कितने ऑक्सीजन के मोल्स हैं, तो यू विल जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 3, राइट? सो यू विल क्विकली गेट योर आंसर इन वन गो, ठीक है? सो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 इंटू ये 1 अपॉन, अब इनके मोलिकुलर वेट्स निकालते जाओ। KClO3 का मोलिकुलर वेट कितना आएगा? 39 प्लस 48 प्लस 35.5, ये 122.5 हो जाएगा। और Al2O3 का 27 इंटू 2 प्लस 48, 102, ठीक है? तो यू डू द मैथ, गेट द आंसर, ठीक है? सो आप बैलेंस इक्वेशन पे भी पीओसी लगाओ, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स, ठीक है? चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे, एंड दिस टाइम इट विल बी स्लाइटली मोर डिफिकल्ट, ठीक है? एंड जो इंफॉर्मेशन है आपके सामने वही है, ठीक है? डोंट आस्क मी एनी क्वेश्चंस कि ये क्या होता है वो क्या होता है, मतलब आपके सामने वो क्वेश्चन आ गया है बस। अब मैं उस क्वेश्चन का कुछ और इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड ही नहीं कर सकता, मान लो आप एग्जाम में ही बैठे हो। हम्म। वैष्णव आपका क्वेश्चन नहीं समझा मैं, मास क्या है एज इन वैल्यू चाहिए आपको? 102 डिवाइड बाय 122.5, 0.83 ग्राम्स। कोई डाउट का आंसर नहीं है, मेरे को नहीं पता है वर्ड्स रिएक्शन क्या होता है, मेरे को नहीं पता है ब्रोमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। ऑल्दो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ये सब आ जाएगा, बट मुझे नहीं पता है, बट फिर भी मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। लक्ष्मी हिंट है पीओएसी, जब रिएक्शन समझ ना आए तो पीओएसी बचाए।
नहीं, मीटिंग फ्रोजन नहीं है सुरावी, मैं टाइम दे रहा हूँ लोगों को आंसर करने के लिए. हाँ, so Ravi, the question is made slightly bit difficult by mixing POAC with the concept of percentage yield. आंसर आप लोगों के आए हैं. I will have to check. I will have to check कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये. 12th है ना ये एक्सपर्टीज अटेनर का. एक्सपर्टीज अटेनर का 12th क्वेश्चन. द आंसर इज 55.5 लीटर्स. ठीक है, तो अगर किसी का आ रहा है दैट्स गुड. हाँ हाँ, वो एनटीपी मतलब 22.4 वाला ही लेके चलना. ये बुकलेट में सब जगह 22.4 ही है. राइट, सब मैं बता देता हूँ. ठीक है, आई एम श्योर दैट यू गाइस आर एंशियस टू क्लोज द क्लास बीइंग दिस द थर्ड लेक्चर. बट मैं एक बार क्विकली बता देता हूँ. देखो क्या हो रहा है यहाँ पर. ब्यूटेन प्रोड्यूस कर रहे हैं कहाँ से, इथेन से. सो यू हैव C2H6. इट इज गोइंग सम रिएक्शन, डोंट नो व्हाट दैट रिएक्शन इज. सम इज प्रोड्यूस्ड. सो पहले ब्रोमिनेशन हो रहा है. ठीक है, पहले ब्रोमिनेशन रिएक्शन हो रहा है एंड देन उसके बाद में वर्ड्स रिएक्शन हो रहा है एंड उसके बाद में C4H10 प्रोड्यूस हो रहा है, ब्यूटेन. ठीक है, नाउ द थिंग इज कि इसके बारे में आपको बोला जा रहा है दैट ये 55 ग्राम्स बनाना है एंड आपसे पूछा जा रहा है कि इथेन का क्वांटिटी कितना होना चाहिए. एंड टू एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन गिवन इज दैट ब्रोमिनेशन रिएक्शन का यील्ड 85% है और वर्ड्स का रिएक्शन का यील्ड 90% है. Now, as you can see that I do not have any choice because I don't know balancing of equation. ठीक है, I don't even know the equation. Balancing क्या करूँगा, पहले equation ही तो पता ही नहीं है मेरे को. So the natural thought process that comes to me is that should I apply POAC? Right. So यहाँ पर what I'll do is I'll apply POAC and POAC on what? तो यहाँ पर दो चॉइस है. अच्छा, ब्रोमिनेशन 90% दिया है क्या? अच्छा ठीक है, वैसे फर्क नहीं पड़ेगा. ये 90% दे दिया, ये 85% दे दिया. ठीक है, now I will be applying here POAC on carbon as the element. ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी ऑप्शन है बट I would avoid applying POAC on H. ठीक है, on hydrogen and oxygen. In case of unknown reactions, क्योंकि typically क्या होगा that oxygen and hydrogen they mostly will become part of side products as well. So there is a very high chance that side products बनेंगे और उनमें भी
हाइड्रोजन ऑक्सीजन चले जाएंगे। अब क्योंकि वो साइड प्रोडक्ट्स के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, so we should not apply POAC on those elements. So that is why it is a safe choice to go ahead and apply POAC on carbon. ठीक है? Now once that is there, so what I would say is that 2 into moles of C2H6, ठीक है, should be equal to 4 into moles of C4H10. This should yield me the equation. But यहाँ पर दो कैच भी है, that पूरा का पूरा कार्बन कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, there is some yield associated with it. तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे जितना कार्बन था पहले रिएक्शन से उसका 90% आगे जाता है एंड दूसरे रिएक्शन से उसका 85% राइट हैंड साइड पे जाता है. Thus 90% and 85% of what was present on the left hand side is what should be there on the right hand side. So this is the new plot twist that came when I combined the concept of POAC with percentage yield. Okay, now you should be able to get the correct answer, that 2 into whatever the volume upon 22.4 ये moles आ जाएंगे into 90 by 100 into 85 by 100 should be equal to 4 into इसके 55 grams upon 58 इसका molecular weight, and यहाँ से you should be able to get your volume in liters. ठीक है, राइट इसमें कुछ डाउट है आपको? एक बार मैं जूम आउट कर देता हूँ. देखने में क्वेश्चन काफी डरावना सा है, बट द सोल्यूशन comes pretty easy if you focus on POAC. हाँ, सो यहाँ पे मोल्स है ना, मोल्स को अपन लोग क्या लिख सकते हैं? मोल्स इज वॉल्यूम इन लीटर्स अपॉन 22.4. जो मोल्स हैं किसी भी गैसियस स्पीशीज के, वी कैन राइट दैट एज वॉल्यूम अपॉन 22.4 एट एसटीपी कंडीशंस. हाँ, रावी को सबसे जल्दी भागने की जल्दी हो रही है. रावी इज क्विकली सेइंग नो डाउट सर. बस बस, हाँ हाँ, शुभम का तो बाय भी आने लग गया है. बेशरम, थोड़ी सी शर्म नहीं आई तुम्हें? नहीं ठीक है, आई अंडरस्टैंड, आई एम स्ट्रेचिंग अ बिट, बट ठीक है, डोंट वरी, वी आर गोइंग टू मीट टुमारो इटसेल्फ. So we'll resume from here only, and tomorrow I'll be doing couple of questions on this, and starting with then I'll take up the part of concentration terms. ठीक है, नहीं 20 मिनट स्ट्रेच नहीं हुआ है लक्ष्मी, इट इज जस्ट 10 minutes. मेरी घड़ी 4 मिनट आगे है, so the actual time is 8:40. 8:30 is supposed to be the ending note. हाँ हाँ मानस, कैलकुलेशन नहीं होता. कैलकुलेशन करने के लिए पहले 108 बार श्री श्री रविशंकर का नाम लेना पड़ता है, उसके बाद कैलकुलेशन होता है. अभी कैलकुलेशन नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूं भाई? कैलकुलेशन करो. मैं कोई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन थोड़ा सिखाऊंगा तुम्हें अभी. हाँ, सो दोज हु वांट टू डिस्कनेक्ट कैन डिस्कनेक्ट. अभी मैं और कुछ नया नहीं पढ़ाने वाला हूँ, एंड दोज हु हैव सम सेंसिबल डाउट्स प्लीज स्टे बैक. इफ यू कैन ask me those doubts, I'll help you. Sumit is asking such calculations will come or not. Sumit, इसे थोड़े से अच्छे कैलकुलेशन आएंगे, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, ये इतना बुरा कैलकुलेशन नहीं है यार. इट इज नॉट दैट बैड. थोड़ा करने करने की जरूरत है, मेहनत आपको. इट इज नॉट दैट बैड. इससे गंदे गंदे कैलकुलेशन आगे भी आएंगे. हाँ सर, tomorrow class is again dedicated to mole concept only. So I'll continue with mole concept and teach concentration terms. And
next class would be something where we will talk about atomic structure. Jalaj, in the second question, कौन सा सेकंड क्वेश्चन करूं, ओजोन ऑक्सीजन वाला? नहीं नहीं, आंसर 60% सही है, एक बार दोबारा देखो तुम कहाँ गड़बड़ कर रहे हो। नहीं मानस, ऑर्गेनिक अभी स्टार्ट नहीं होगा, ऑर्गेनिक काफी लेट स्टार्ट होगा। हाँ मैं होमवर्क, आज के लिए जो होमवर्क है वो मैं भेजता हूँ ग्रुप पे, आई विल सेंड इट ऑन द ग्रुप। हाँ अर्पित कुछ कहना चाह रहे हो, रुको, लेट मी अनम्यूट यू, बोलो। Can you give an example where POC cannot be applied? जो side product वाला आप कह रहे थे। हाँ हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये आपके सामने, रुको मैं कोई सेट ऑफ रिएक्शन लिख के देता हूँ। लेट्स से ये रिएक्शंस हो रही है, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने क्लोरीन लिया 1 ग्राम, ठीक है। यस सर। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे बताओ कितना KCl बनेगा, ठीक है। तो आप बोलोगे कि भाई क्लोरीन जो है वो KCl और KClO दोनों में जा रहा है, ठीक है, एंड सिर्फ KClO अगले रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अब I will not be able to apply POAC between chlorine and KCl because chlorine got lost in some other species as well. Okay sir. ठीक है. So that element should get conserved. It should go entirely from the reactant to the product side. Okay sir. लाइक अगर इसमें अगर एक मतलब पोटेशियम ऐड करते अगर रिएक्शन होता K + Cl2 और फिर अगर KCl ही बनता सिर्फ, देन वी कैन अप्लाई द POC मेथड। हाँ हाँ, अगर एलिमेंट कंजर्व हो रहा है, कहीं साइड प्रोडक्ट्स वगैरह में नहीं जा रहा है तो यस। और सर आप वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का क्या कह रहे थे, वो साइड प्रोडक्ट में चले जाते हैं? टिपिकली अगर मान लो आपके पास चॉइस है ना, 2 एलिमेंट्स दिख रहे हैं जिन पे आप POC अप्लाई कर सकते हो, हाँ तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे अवॉइड करना। ओके, थैंक यू सर। ठीक, हाँ बाकी लोगों और कुछ पूछना? अच्छा ठीक है, और लोगों ने भी कुछ हैंड रेज करा है। जलज, हाँ बोलो जलज। So if reaction will be 60%, then molecular weight will be 60 into 48 plus 32 into 40 upon 100, which is coming 41.6. नहीं रे राजा, ऐसे कैसे खुद खुद अपने मन से कुछ भी फॉर्मूला बना दोगे क्या? किसने सिखाया ऐसा फॉर्मूला? So for molecular weight ना, अरे बट मॉलिक्यूलर तो रिएक्शन का स्टोइशियोमेट्री ऐसे 1:1 थोड़ी ना है, मतलब ये देखो ऐसा A goes to B नहीं है ना। अगर A goes to B होता तो मैं आपकी बात समझ सकता था, ठीक है, बट यहाँ पर 2A goes to 3B था, समझ रहे हो? आपने जो फॉर्मूला लगा रहे हो, सी यू आर सेइंग दैट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट जो है, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्व करना, ये 2O2 इज गिविंग और 3O2 इज गिविंग 2O3, ठीक है, ये 1-0 हो गया, ठीक है। अब आप क्या कह रहे हो, 50% रिएक्शन हो रहा है, मतलब इसका 0.5 मोल्स कंज्यूम हो जाएगा, तो इसका कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, 2/3 इंटू 0.5, राइट। तो ये इनके मोल्स रहेंगे, तो अब मॉलिक्यूलर वेट निकालो, देखो कितना है, 0.5 इंटू 32 प्लस 2/3 इंटू 0.5 इंटू 48 अपॉन टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, 0.5 प्लस 2/3 इंटू 0.5। ये समझ में आया?
इस तरीके से ये फॉर्मूला बनेगा। आप जो फॉर्मूला लगा रहे हो वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, फॉर्मूला आप सोच कहाँ से रहे हो? आपने ये तो नहीं सोचा कि मतलब ऐसा परसेंटेज कॉम्पोजिशन का। सी द थिंग इज आप जो, अच्छा आपको क्वेश्चन ना मैं एक और तरीके से सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है? आई थिंक आपका डाउट उससे क्लियर होगा। यहाँ पर ऑब्जर्व करना, O2 का मॉलिक्यूलर वेट है 40, ठीक है? सॉरी, O2 का मॉलिक्यूलर वेट है 32, ठीक है? एंड O3 का मॉलिक्यूलर वेट है 48, ठीक है? एंड आपको मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट बोला जा रहा है 40, ठीक है? तो आप क्या सोच रहे हो कि अरे ये तो इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में है, ठीक है? मतलब 50% O2 है एंड 50% O3 है ना? यही सोच रहे हो? यस, बिल्कुल सही सोच रहे हो। बट अब सोचना है यहाँ पर, ये चीज अचीव करने के लिए ये रिएक्शन तो ऐसे होगा ना कि इसमें से मान लो अगर x मोल्स रिएक्ट हो गए तो इसके 2/3x प्रोड्यूस होंगे, और ये दोनों 50-50 है, मतलब 1/1 - x शुड बी इक्वल टू 2/3x। सो x कितना आ जाएगा? 3/5। तो इम्प्लाइज परसेंटेज रिएक्शन कितना हो गया? x/1 into 100% ना? अभी समझ में आया? यस सर, यस सर, थैंक यू। ठीक, ऑल राइट। और किसी का कोई डाउट है? अच्छा, पूर्णा कुछ कहना चाह रहे हो, बोलो। Sir, I had a doubt. In previous classes, you talked about parallel reactions. So, in those questions, can we also have a case of limiting reagent? Yeah, of course. But then we won't be able to take those variables and from the product to the reactants, right? हाँ हाँ, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा। मैं एक असाइनमेंट भेजूंगा, उसमें रहेगा। Okay, fine. I'll send an assignment, उसमें वो क्वेश्चन है and you will have to struggle with it. Okay, thank you, sir. ठीक है। हाँ शेखर, कुछ कह रहे हो? सर एक्चुअली व्हेन वर्ड इक्वेशंस दिए जाते हैं क्वेश्चंस में, तो मैं वो इक्वेशन क्या मैं विजुअलाइज नहीं कर पाता मेनी टाइम। सो मतलब क्या करना है उसको रिजॉल्व करने के लिए? सी अभी जैसे मैंने जो एग्जांपल करा है उसमें तो बहुत सारे वर्ड वाले क्वेश्चन थे जिसमें इक्वेशन ही समझ में नहीं आई थी। यस सर। ठीक है, तो वो तो कैसे हैं कि वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि डेलिबरेटली डिफिकल्ट बनाए गए हैं, उनके वर्डिंग्स इस तरीके से कि समझ में ही नहीं आए, एंड वही आपके लिए हिंट होता है कि पीओएसी अप्लाई करना है। ठीक है, यस सर। बट अदरवाइज ये जो आपका स्ट्रगल है ना, ये आई शुड से कि स्टार्टिंग का स्ट्रगल है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, ये स्ट्रगल चला जाएगा। इट वोंट बी अ बिग कंसर्न। थैंक यू सर। ठीक, ऑल राइट, चलो देन लेट्स क्लोज टुडेज लेक्चर। ठीक है, विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम 7 बजे। तब तक के लिए टेक केयर गाइस।